नमस्कार, मी सुवर्ण. बातमी आणि बरंच काही या बुलेटिनमध्ये. मुंबईतल्या अंधेरीतली एक धक्कादायक घटना आपण बघणार आहोत. अभिनेत्री पायल घोषवर मुंबईतल्या अंधेरी इथं काही हल्लेखोरांनी ॲसिडची भीती दाखवून हल्ला केलेला आहे. पायल घरी परतण्याकरता कारमध्ये बसत असताना हा हल्ला झाला. यात हल्लेखोरांनी पायलकडचं सामान हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. हल्लेखोरांनी चेहरा पूर्ण झाकला होता, त्यामुळे पायलला त्यांना पाहता आलं नाही. या हल्ल्यात तिला काही किरकोळ जखमा झालेल्या आहेत. मी माझ्या ड्रायव्हिंग सीटवर बसणार होते आणि काही माणसं आली. त्यांनी हातात ॲसिड घेऊन माझ्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मी मदतीकरता ओरडले तेव्हा ते हल्लेखोर पळून गेले. त्यांनी माझ्या डोक्यावर रॉडने मारलं, पण सुदैवानं डोक्याला कोणतीही इजा झाली नाही, पण हाताला मात्र जखम झालेली आहे, कारण त्यांनी मला हातावरही मारलं. मी त्यांचा चेहरा पाहू शकले नाही. मी आणि माझा भाऊ या प्रकरणावर FIR दाखल करणार असल्याचं पायलनं म्हटलंय. Hi, I'm Payal Ghosh, and yesterday went out to buy some medicines. And as I was trying to sit on my driver's seat, some people came and tried to attack me. There was a bottle in their hand. I don't know what it is. I suspect maybe acid or something, and they tried to hit me with a rod. And I tried to rescue and shouted, so the rod fell on my left hand and I got injured. And as I shouted, they ran away. So probably today I'll go to police station to do the FIR. I don't know, this kind of thing never ever happened in my life, ever in my life. This is the first time in Bombay that I had to face this. आमचे प्रतिनिधी प्रफुल्ल साळुंखे यांच्याशीही आपण बोलणार आहोत, पण अभिनेत्री पायल घोष स्वतः आपल्यासोबत दूरध्वनीवरून जोडल्या गेलेल्या आहेत. त्यांच्याशी बोलूया. पायल, क्या अभी आपकी तबीयत ठीक है? I'm feeling little pain. थोड़ा सा injury आ रहा है, nothing much, but the pain is there because it's on the bones and all. I haven't got any blood or something, but I got this like little bit of injury. I got some bruise. आपने कहा था कि FIR करने की सोच रही है आप, क्या आपकी FIR हो गई है पायल जी? नहीं, आज तो मैं निकल ही नहीं पाई हूँ because I'm literally in pain. थोड़ा सा आज रेस्ट करके कल जाऊंगी, क्योंकि ये तो कभी हुआ नहीं है, ऐसे हुआ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मतलब कभी भी नहीं, मतलब आई डोंट नो so why suddenly how it happened. और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन हो सकते हैं इसके पीछे. Why they had to target me. There's something very weird, and I'm little scared because you never know. Then it's become very difficult to go out and like alone. पर आप बहुत सालों से मुंबई में रहती होंगी, क्या आपको मुंबई कभी अनसेफ लगी? कभी भी नहीं. I have taken like flights like 4 in the morning, 3 in the morning. I have never ever gone through any a single kind of this kind of disturbance ever in life. Means I always say, I have always say loudly that Mumbai is the safest city in the country, and it's always been. It is a planned thing, or else I don't know. I think it's quite a planned thing. पायल, आप बता सकती है आपको कहाँ लगी है? मतलब इंजरी अगर छोटी सी भी हुई होगी, लेकिन इंजरी कहाँ पे हुई है, इंसिडेंट कैसे हुआ, क्या आप बता पाएंगे प्लीज? Actually the thing is that they tried to hit me and like rod, and then I did this, so the rod fell on my hand, and then I shouted and immediately they ran away. And I don't know, they were kind of shabby people, and it's like I couldn't even had that kind of time to even recognize anybody, or everybody was in mask, and there was something. कितने लोग थे पायल? और कब, मतलब कल शाम को ये घटना, मतलब ये इंसिडेंट कब हुआ? क्या डिटेल बता पाएंगे? It's after 10 o'clock. I was I didn't have the medicine. I was trying to contact the medical vendor to send the medicine at home, but I was not getting through. So I thought that okay, we'll have a stroll also, and let me to go and take the medicine. So I went out, and that's how it happened. And the whole point is that like my going out and they are coming anywhere, like that was something very weird. I don't know how it happened, what was the plan, how they knew that, because it was not आपको लगता है पायल, आपको शक है कि ये प्लान हो सकता है, कोई जानबूझ के ये कर रहा है, आपको डराने की कोशिश कर रहा है, आपको ऐसा लगा? If it is so, then somebody might be following me and I don't even know about it. क्योंकि मेरा कल कोई प्लान आउटिंग नहीं था कि मैं जाने ही वाली हूँ या किसी को पता है. It was a sudden
decision to go out of Hmm. house and to get the medicine. And my driver, he doesn't come on Sundays, so I had to drive myself to जी the जी thing. But मैं निकली और ऐसे मेरे साथ हुआ तो somebody might be following me ना, और ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको कैसे पता चला कि मैं अभी निकलने वाली हूँ. लेकिन बहुत बार ऐसे देखा गया है कि अकेली लड़की अकेली औरत अगर कहीं है तो उसके साथ ऐसा इंसिडेंट अगर हुआ तो जब वो चिल्लाती है या फिर कोशिश करती है मदद के लिए पुकारती है तो कोई आता नहीं है. क्या आपको भी ऐसा ही अनुभव आया जब आपने चिल्लाने की कोशिश की या किसी को मदद के लिए बुलाने की करने के लिए बुलाने की? It was like utna koi people were not much people were not around, but the shopkeepers, they came running to me and said, what have happened, madam? And then there were nobody, like in some time everybody vanished, and I think 3-4 people were there, but I couldn't count because it was not expected. I was just going to sit at my driver's seat, मैं बैठने की कोशिश कर रही थी, and that is the time it happened. And they were carrying some bottle. बॉटल में क्या था पता नहीं मुझे, मेरे लिए तो क्या है क्या नहीं मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है. But I protection, or else I'm not, because I'm not getting into the thing that what exactly happened with me. I'm still in trauma to come out of it. पायल, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो मुंबई में आके अकेले रह के अपना काम करती है, अपना करियर करती है. बहुत सारे लोग वही यही कहते हैं कि मुंबई सेफेस्ट सिटी है क्योंकि किसी भी वक्त. हाँ, लेकिन हम लोग इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि बहुत सारी क्राइम इंसिडेंट्स अभी भी लड़कियों के साथ हो रही है और बहुत सारे लोगों को इसको फेस करना पड़ रहा है. तो ये दोनों चीजें देखते समय आपको क्या लगता है मुंबई के बारे में? मुझे यही मतलब आई एम लिटिल शॉक, क्योंकि आई एम इन मुंबई फॉर लास्ट 10 years. 10 साल से मैं मुंबई में रहती हूँ. मैंने ऐसा भी टाइम हुआ कि अगर अर्ली मॉर्निंग 4 बजे की फ्लाइट है तो मैंने ओला भी लेके एयरपोर्ट गई हूँ. हाँ. ऐसे बहुत बार हुआ कि मुझे कॉफी पीने का मन हुआ और आई डिडंट फील लाइक ड्राइविंग. मैंने रिक्शा लेके रात के 2 बजे कार्टर रोड भी जाके कॉफी पीने गई, कैफे कॉफी डे में. एंड द पॉइंट इज दैट लाइक मेरे साथ मैंने कभी भी कुछ भी ऐसा कुछ मैं सोच ही नहीं सकती. इवन मुझे अगर घर पे डांटते थे इतने रात को क्यों गए कॉफी पीने का, इतना क्या है, इतने रात को नहीं निकलना चाहिए. सो इट्स टू शाउट एंड टेल इट टू एवरीबडी कि इट्स मुंबई और यहाँ पे कोई किसी को छू भी नहीं सकते है. एंड नोबडी हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट. तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये कोई रेगुलर थिंग है. मुझे तो आई एम हैविंग दैट गट फीलिंग दैट इट्स समथिंग प्लान्ड. बिल्कुल. आप जल्दी से ठीक हो जाए और आप एफआईआर कर सके. पायल, अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच. न्यूज़ 18 लोकमत से आपने बात की. थैंक यू. थैंक यू.